Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. In today's class, we will start new chapter of Unit 4. Okay. In the Unit 4, there is second chapter after the poem Crying. It is given on page number 64. It is given on page number 64. All of you open your books also. So, in today's class, we will understand the meaning of this chapter or this lesson. Okay. So, my elder brother means मेरे बड़े भाई. Okay, so this is the story by Premchand. Okay, Premchand is one very great writer. This is the story by Premchand which is titled as बड़े भाई साहब. Okay, in Hindi जो ये story का नाम है that is बड़े भाई साहब. Okay, so the story shows that experience is as important as hard work. Okay, so after reading this story, you came to know that the experience also have so much importance in our life as hard work. जितना हम लोग मेहनत करते हैं उसके साथ साथ हमारा जो experience भी है, okay, that is also important. Okay, so if we talk about this story is about two brothers who have contrasting personalities and opinions. Okay, they both have different opinions about the things. Okay, they have contrasting characters. Okay, जैसे दोनों की जो पसंद है, दोनों का जो सोचने का तरीका है, that is different. Okay, so in this story, younger brother is the narrator who tells us about life with his elder brother. Okay, so in this story, two brothers are there. ओके एंड द यंगर ब्रदर इज द नरेटर. जो यंगर ब्रदर है वो नरेटर है, मीन्स वो स्टोरी सुना रहा है. एंड हु टेल्स अस अबाउट लाइफ विद हिज एल्डर ब्रदर. उसके बड़े भाई के साथ उसकी लाइफ कैसी है वो उसके बारे में हमें बता रहे हैं. देर इज एज डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर्स ऑल्सो. ओके, देर इज एज डिफरेंस ऑफ 5 years बिटवीन दैम. ओके, दोनों में 5 years का डिफरेंस है एंड ऑफ 3 grades. 3 grades मीन्स वो 3 क्लास का उनमें डिफरेंस है. ओके, सो दिस स्टोरी टेल्स अबाउट देयर लाइफ एंड देयर रिलेशनशिप. उनकी लाइफ कैसी है, उनके रिलेशंस कैसे हैं. ओके, सो एंड वी कैन ऑल्सो से दिस स्टोरी ऑल्सो टीचेस अस दैट वी शुड लिसन आवर एल्डर्स, आवर पेरेंट्स. आवर एल्डर्स मीन्स जो भी हमारे बड़े हैं, वो पेरेंट्स हैं, बड़े सिस्टर ब्रदर्स हैं, अपनी टीचर्स हैं, कोई भी हैं, वी शुड listen them. Okay, and in the story it is also mentioned that there is no matter how equal we become. Okay, हम कितना भी बराबर उनसे हो जाएं with our elders, ठीक है, no matter how equal we become with our elders, they will always have more experience. Okay, उनका experience हमसे ज़्यादा ही होगा because they are elder than us. Okay, वो हमसे बड़े हैं इसलिए obviously they have more experience about the things, about the lives. Okay, so in this story यही सब डिस्कस किया है. इन दोनों ब्रदर्स के कैसे रिलेशंस हैं उससे आपको पता चलेगा कि उसको कैसे लर्निंग मिलती है कि yes, we should listen our elders and respect them also. Okay, and we must not be very much too confident, ठीक है, or we can say too over confident. अगर हम कभी लाइफ में हमें सक्सेस मिल रही है, ओके, वी शुड बी हैप्पी, बट वी आर नॉट बिकम टू ओवर कॉन्फिडेंट. हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए. ओके, सो दिस स्टोरी माई एल्डर ब्रदर इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स. लेट अस रीड दिस स्टोरी line by line and we will understand the meaning. Okay, my elder brother on page number 64. Okay, and from 65 it starts scene 1. Okay, so this is the story in the form of play. Okay, एक आपको जैसे नाटक होता है, आपने स्कूल में भी बहुत बार देखा होगा कि हम स्टेज पर नाटक करते थे, एक कैरेक्टर कोई बना होता था, वो आकर अपने डायलॉग्स बोलता था, देन सेकेंड एंड थर्ड वन कम. ओके, सो दिस स्टोरी is like a play. Okay, and in this story as you see that scene 1 means आप एक जो पहला सीन दिख रहा है, ओके, उसमें आपको दिखा रखा है कि लोकेशन क्या है.
ए हॉस्टल रूम, एक लोकेशन क्या है, एक हॉस्टल का एक रूम दिखा रहे हैं. सो इट मीन्स दे बोथ आर लिविंग इन द हॉस्टल, वो दोनों हॉस्टल में रह रहे हैं. 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. Okay, so 2 brothers are there whose age is 9 and 14 years. Okay, so 5-year difference, as I told you earlier also that there is the age difference of 5 years between them. The elder brother भैया is reading a book. जो elder brother हैं, जिनको जो यंगर वन है, वो भैया बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक पढ़ रहे हैं. एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. एंड द यंगर वन मुन्ना, whose name is Munna, what he was doing, he is doing he's drawing pictures of birds and animals. वो animals और birds का picture बना रहे हैं. Okay, so it is clear that this is the scene one. In the scene one, there is a hostel room in which, in this scene, 2 brothers are there, aged 9 and 14. They both are sitting at a study table. उनमें से जो भैया है is reading a book and the younger one, Munna, is drawing some birds and pictures. Okay, so let's see. आगे चलते हैं. Now, भैया. So this is the dialogue of Bhaiya and then Munna. So the sentence written in front of Munna, this is the dialogue of Munna. Okay, so आपको इस तरीके से पढ़ना है. भैया, what are you doing, Munna? So भैया is asking, what are you doing, Munna? Munna is saying, I am drawing. मैं drawing कर रहा हूँ. भैया, when will you study? Where were you in the morning? So now भैया said कि when will you study? तुम कब पढ़ोगे? Where were you in the morning? तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. ठीक है, जैसे अभी आप अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा है और आपके पेरेंट्स को एकदम से पता चल जाता है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि अच्छा आज तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम सुबह कहाँ पर थे. ठीक है, तो आप एकदम से ऐसे बोल रहे, पीले पड़ जाओगे ना, एकदम से हम जैसे शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे कैसे पता चल गया. ओके, सो टर्निंग पेल, वो टर्निंग पेल मीन सिचुएशन दिखाने की, अब वो एकदम से ऐसे पीला सा पड़ गया है. ओके, कि अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो मैं तो पकड़ा गया. सो व्हाट ही सेड, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? नाउ मुन्ना इज आस्किंग, भैया हाउ यू कैन सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? आप इतने घंटों से घंटों ही आप एक बुक के साथ कैसे एक साथ इतने घंटे बैठ जाते हो? ओके, सो आपको समझ में आ रहा है. इन दिस भैया एंड मुन्ना हैव अ कन्वर्सेशन. भैया पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, वेयर यू वर इन द मॉर्निंग. सो मुन्ना इज सेइंग कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. और वो एकदम से ऐसा पूछ रहा है, वो परेशान है कि भैया आप कैसे पढ़ लेते हो इतने दिन, इतने टाइम तक, इतने समय तक. भैया, दैट्स बिकॉज. ओके, सो what we pronounce this, that's, or full form is of this is that is. Okay, so you have to understand these things also in between the lines. जब बीच बीच में ये चीज़ें दी हुई होती हैं तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. You should be very careful while reading. That is. Okay, the full form is that, is, and we pronounce this as that's. Because I want my foundation in education to be very strong. Okay, so भैया is saying कि मैं ऐसा इसलिए करता हूँ. I sit with a one book for so many hours. मैं इसलिए पढ़ता हूँ, क्यों? क्योंकि I want my foundation. Foundation means बेटा नींव. ठीक है, जो नींव होती है हमारी, जो बुनियाद होती है. ठीक है, आई वॉन्ट माई फाउंडेशन, जो मेरी नींव है पढ़ाई में, इज आई वॉन्ट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ही मजबूत बने. ओके, ठीक है, इससे क्या मतलब है कि वो अपने कंसेप्ट हैं जो वो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर करना चाहता है. ही डू नॉट वॉन्ट टू स्टडी जस्ट फॉर पासिंग द क्लास. ओके, और गेटिंग द मार्क्स. वो सिर्फ मार्क्स ना लेकर या पास ना होकर, वो चाहता है कि जो उसके कंसेप्ट हैं, जो वो पढ़ रहा है, he should be very clear. ठीक है, वो उसमें बहुत he wants to be very clear in that. ठीक है, if the base is strong then the building will stand firmly. Firmly means बहुत ही मजबूती से. ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं भैया कि if the base is strong, जो हमारी बेस है, जो हमारी नींव है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होगी, तो जो उसके ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे वो बहुत ही जो है मजबूती से खड़ी रहेगी. सो ही वॉज कंपेयरिंग हिज ओन लाइफ
और हिज ओन एक्सपीरियंस ऑफ हिज स्टडीज विद द बिल्डिंग, कि जैसे एक बिल्डिंग की जो नींव होती है वो बहुत ही मजबूत हम बनाते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग रहे, ऐसे ही हमें अपनी पढ़ाई में भी जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर करनी चाहिए. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's work. ओके, वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि समटाइम्स, और हो सकता है कि ऐसा करने में इट टेक्स मी 2 years, वो मुझे 2 साल लग जाएं टू डू 1 year's वर्क. 1 साल के काम को करने में हो सकता है कि मुझे 2 साल लग जाए, समय लगे, बट आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, मैं लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ. ओके भैया, और एंड स्ट्रॉन्ग इन द सेंस मीन्स जो भी वो चीज़ पढ़ रहा है, ही वॉन्ट्स टू बी वेरी क्लियर इन दैट. ओके, so Bhaiya, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. So Munna is saying कि भैया you are 5 years older than me. आप मेरे से 5 साल बड़े हैं और 3 classes ahead. Ahead का means होता है बेटा आगे, ठीक है, ahead of me, और मेरे से 3 क्लास आगे हैं. I wonder why you keep writing the same word 20 times. I wonder मतलब मैं कई बार ऐसा बहुत सोचता हूँ, और मैं क्या सोचता है कि why you keep writing the same word. आप एक ही वर्ड को बार बार 20 times कैसे लिख लेते हैं. One sentence more than 20 times, और एक सेंटेंस को भी आप 20 times लिखते हैं. And copy poems several times in beautiful letters. ठीक है. So here Munna is asking to Bhaiya that why you keep writing the same word or same sentence again and again. ठीक है, आप बार बार उसको क्यों लिखते हैं, और you copy the poem several times. ठीक है, आप उसको बार बार लिख रहे हैं. So why you are doing this? So Bhaiya, you know studying English. अब now Bhaiya is saying that you know studying English is no child's play. ठीक है, नो चाइल्ड्स प्ले मीन्स ये बच्चों का खेल नहीं है. इंग्लिश पढ़ना जो है वो बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न द इंग्लिश सब्जेक्ट देन यू शुड वर्क वेरी हार्ड. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली. ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट और स्पीक द इंग्लिश properly, then you have to do lots of hard work. You have to do tremendous effort. Okay, so to speak or write English properly, tremendous effort is required. Tremendous means कड़ी मेहनत, है ना, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी if you want to speak or write in English. Next, but the moment you get a chance, you run to the field. So भैया is saying, but the moment, जैसे ही you get a chance, you run to the field. तुम मैदान में चले जाते हो, प्ले मार्बल्स खेलते हो, एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और पेपर काइट्स को फ्लाई करते हो, और सिट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और सिर्फ मज़े के लिए अपने दोस्तों के साथ खाली बैठे रहते हो, मतलब उनके साथ तुम गपशप करते हो. यू प्ले मार्बल्स, यू रन टू द फील्ड, यू फ्लाई पेपर काइट्स. सो हियर भैया इज telling the Munna that whenever you get a chance, जब भी तुम्हें मौका मिलता है, you do all these things. Cannot you sit down and study? क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते हो? So here जो भैया है वो अपने ब्रदर को, यंगर ब्रदर को बता रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़, कि पढ़ाई की कितनी इम्पोर्टेंस है. जब हमारे पास समय होता है, वी शुड यूज़ दैट टाइम प्रॉपरली. ओके, सो नेक्स्ट on page number 66, Munna. Now Munna is saying, oh भैया, there is a big मेला. अब यहाँ पर देखिए भैया तो उसको इतनी अच्छे से समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन मुन्ना क्या बोल रहा है, ओ भैया, देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो. बट अभी भी वो कहाँ पे सोच रहा है, कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए. सो मुन्ना इज सेइंग देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज, सो शुड वी गो, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए. नाउ भैया से, have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? So भैया उससे पूछ रहे हैं कि have you ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or a hockey match, कि तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं कभी एक मेले में, fair means मेला, FAIR, ठीक है, मेले में जा रहा हूँ, क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ या फिर हॉकी मैच देख रहा हूँ. I don't go near them, मैं उनके पास नहीं जाता हूँ. I prefer to study a book, but instead of going outside
for watching a cricket or hockey match or to a fair, I prefer टू स्टडी अ बुक. मैं एक बुक को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मतलब मैं बुक ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years एंड आई डोंट माइंड, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं एक क्लास को 2 बार रिपीट करूँ मोर देन 2 years. ठीक है, 2 साल से भी ज़्यादा अगर मैं उसे रिपीट करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ. ये नहीं कि सिर्फ मैं पासिंग मार्क्स लेकर और पास हो गया हूँ, ठीक है, मैंने चीटिंग किया और मैं पास हो गया. ओके, मैं अपने कंसेप्ट जो है वो सब बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. बट यू माइट स्टे, ये बोल रहे कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे कि तुम मेला देखने जा रहे हो, यू प्ले ऑल द टाइम, ठीक है, यू सिट आइडल विद योर फ्रेंड्स, तो क्या होगा, यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, और तुम पूरे समय, पूरे अपनी लाइफ एक ही क्लास में भी रह सकते हो. डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. ठीक है, डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम चाहते हो, सोचते हो कि तुम पास हो जाओगे इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम. ठीक है, अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे सिर्फ खेलने में तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम पास हो जाओगे? नो, यू माइट स्टे इन द सेम क्लास फॉर ऑल योर लाइफ. ओके, यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. सो नाउ मुन्ना जो भैया है वो मुन्ना को थोड़ा सा इमोशनली भी समझा रहे हैं. ठीक है, वो उसमें एक ये चीज़ उनको बता रहे हैं कि यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. जो हमारे फादर जो इतनी मेहनत से कमा रहे हैं पैसे को, यू आर सिंपली वेस्टिंग दैट, तुम उसको सिर्फ वेस्ट कर रहे हो. ओके, सो वो थोड़ा सा उसको इमोशनली समझा रहे कि वी शुड स्टडी वेरी हार्ड बिकॉज आवर फादर इज़ अर्निंग, है ना, एंड बिकॉज आवर फादर इज़ डूइंग टू हार्ड वर्क. वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फॉर अर्निंग द मनी फॉर आवर स्टडीज़. ओके, सो वी शुड नॉट वेस्ट फादर्स मनी. ओके, सो ये हमारे लिए भी है लर्निंग है बच्चे, कि हमें भी अब जो हम देखिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपके लिए कितना मेहनत करते हैं. ठीक है, अभी जैसे ये भी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है उसमें भी वो आपको कितना हेल्प कर रहे हैं. सो हमें उनके बारे में सोचकर, हमें अपनी लाइफ और उनके लाइफ के बारे में सोचकर वी शुड स्टडी वेरी हार्ड. ठीक है, हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए. वी शुड वर्क वेरी हार्ड. Okay, so again next, मुन्ना start crying or on being scolded. ठीक है, scolded means डांट पड़ना, जब आपको कोई डांट मारता है. ठीक है, मुन्ना starts crying और वो रोने लग जाता है. on being scolded and sobbing sound. ठीक है, जैसे सुबकना होता है ना, आप बहुत तेज़ से आवाज़ करके नहीं रो रहे हैं, आप थोड़ा सा सुबक रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे आवाज़ आ रही है, वाह वाह वाह, ठीक है, ऐसे सुबक रहे हैं. ओके, सो नाउ मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग, अब वो रोने लग जाता है. अब नाउ मुन्ना से भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. अब वो क्या बोल रहा है कि भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, मेरा मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊं, एंड गोइंग बैक होम, और मैं यहाँ से घर वापस चला जाऊं. क्यों? क्योंकि अभी वो कहाँ पे रह रहे हैं? इन द हॉस्टल. ओके, सो भैया नाउ स्टॉप क्राइंग. तो भैया बोलता है अच्छा अब रुको, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो. पुट ऑन ए नाइस स्माइल. ठीक है, पुट ऑन ए नाइस स्माइल, अब थोड़ा सा मुस्कुराओ. लुक, आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. गेट अप एट डॉन. ओके, सो नाउ भैया क्या बोलते हैं कि ओके स्टॉप क्राइम, है ना, जब भी हम लोग ऐसे कभी परेशान होकर रोने लग जाते हैं तो हमारे जो बड़े हैं, एल्डर वंस हैं, वो हमें चुप कराते हैं. सो यहाँ पे भी वो उसको चुप करा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, स्माइल करो एंड लुक आई विल मेक ए टाइम टेबल फॉर यू. ठीक है, कि टाइम टेबल मैं प्रॉपर, कि एट दैट टाइम यू शुड डू दीज थिंग्स, मैं तुम्हारा ये एक टाइम टेबल बनाता हूँ और वो उनको, और जो तुम्हें फॉलो करना है. एंड यू शुड गेट अप एट डॉन, उसके लिए आपको क्या, कब उठना पड़ेगा? डॉन का टाइम होता है बेटा बिफोर द सनराइज. ठीक है, जब बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इज डॉन. एंड इन हिंदी वी कैन से भोर. नाउ सो दिस इज द टाइम टेबल विच भैया मेड फॉर द मुन्ना. Okay, so here it is written the time and here it is the time schedule. So at 6 a.m. wash your hands, have your breakfast and sit down to study. So bhaiya made a timetable and in that
6 AM को उसको क्या करना है कि वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धो, हैव योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करो एंड सिट डाउन टू स्टडी, और पढ़ाई के लिए बैठ जाओ. 6 to 8 AM you should study English. 8 to 9 AM you should study maths, and 9 to 9:30 history. Then 3:30 को आपको क्या करना है, then off to school. Then 5 to 6 PM grammar, half an hour for strolling. 6:30 to 7 English composition. Okay, so 6:30 to 6:30 to 7 you should study English composition. Okay, then dinner, उसके बाद तुम्हें डिनर लेना है. Then 8 to 9 PM translation, you should study translation, and 9 to 10 Hindi, and 10 to 11 other subjects, then to bed. Okay, so you should go to bed at 10 PM. आप 11 बजे आपको सोना है. 6 in the morning you should get up, तुम्हें उठ जाना है. After that he made a schedule for different things for Munna. Okay, other subjects and then to bed. So, okay, बाकी जो भी अगर कुछ चीज़ बच गई है तो वो तुम्हें करना है. Okay, so understand, he made provision for different subjects, अलग अलग सब्जेक्ट कौन से टाइम में पढ़ने हैं. एंड 5 to 6 में जो आप देख रहे हैं ग्रामर और ये सब, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग. स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है बेटा टहलना, ठीक है, भ्रमण करना, घूमना. उस टाइम ये क्या है कि आधा घंटा तुम थोड़ा सा टहल सकते हो, घूम सकते हो. ओके, सो दिस इज द शेड्यूल. वी शुड ऑल्सो मेक दीज टाइप ऑफ शेड्यूल्स फॉर आवर सेल्स ऑल्सो. ओके, हमें भी कि मॉर्निंग टू नाइट हमें कौन कौन से टाइम में कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है. We should also follow these type of timetables in our life. Okay, so I hope you will make these type of timetable for yourself. आप भी अपने थोड़ा सा एटलीस्ट आप स्टार्ट करें ऐसा ना कि हमें इतने टाइम तो पढ़ना ही है. अदरवाइज तो हम सोचेंगे ठीक है अभी पढ़ेंगे और वो टाइम ऐसे ही निकल जाएगा. ठीक है, सो आपको भी ऐसा ही टाइम टेबल अपने लिए बनाकर उसको फॉलो करना है. ओके, देन यू फील सम डिफरेंस इन योर लाइफ. आप देखेंगे कि आपको कभी भी कुछ परेशानी नहीं होगी. आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करके अपना सभी काम टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे. नाउ ऑन पेज नंबर 67 see Munna, but when is the time to play? So after looking the schedule, Munna said, when is the time to play? खेलने का समय कब है? Play, what is the need Munna? खेलने की क्या ज़रूरत है? Oh, I love the green fields, the gentle breeze. Munna said, oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hututu sound of kabaddi and the hurry and flurry of a volleyball. Hurry and flurry का मतलब होता है बेटा बहुत ही उत्सुक, ठीक है, सडन एक्साइटमेंट एकदम से, ठीक है. एंड हरी का ही जैसे I like the touch and go and hututu sound of the कबड्डी जब हम खेलते हैं तो एक साउंड निकालते हैं, ठीक है. एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल में आपने देखा होगा कितनी जल्दी से, जैसे ही आपके पास बॉल आई है फिर आपको हिट करनी है तो उसमें जैसे एक बहुत ही जल्दबाजी, आपको बहुत ही एकदम से सडनली एक्ट करना होता है, उसी को शो कर रहा है ये हरी एंड फ्लरी, ठीक है. सडनली जब आप कुछ चीज़ करते हैं. पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट. सो हियर मुन्ना सेड दैट green field, gentle breeze, okay, the game of kabaddi or volleyball or a football pulls me like a magnet. ठीक है, मैग्नेट जैसे एक चुंबक हमें अपनी तरफ खींचती है. Similarly, he was comparing all these things with a magnet, that ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं. Okay, and I love to play these games. As soon as I am on the field, I forgot everything. Here Munna said that कि जैसे ही मैं फील्ड में होता हूँ, I forget everything. मैं सभी चीज़ें भूल जाता हूँ. Okay. So here Munna is complaining to his भैया that in this timetable there is no time for play. खेलने के लिए समय नहीं है. But I love to play. और मुझे ग्रीन फील्ड में, ग्रीन ब्रीज में जाना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है. एंड ग्रीन ब्रीज का मतलब ग्रीन फील्ड
जो ग्रीन मैदान है, एंड जेंटल ब्रीज मीन्स बेटा जो बहुत ही अच्छी एक सुहानी सी हवा चल रही होती है, बहुत ठंडी, इट यू फील्स हैप्पी, है ना, जब गर्मी नहीं लगेगी आपको, बहुत अच्छा सा मौसम होगा, ठीक है, जेंटल ब्रीज बोलते हैं हम इसको। ओके, नेक्स्ट सीन 2। अभी सीन 1 कंप्लीट हो गया है। इन द फर्स्ट सीन हॉस्टल रूम का एक सीन दिखाया था इन विच मुन्ना एंड भैया are talking with each other. In that Bhaiya is saying to Munna that you should not waste your time in playing or sitting idle with your friends, but instead of doing all these things you should follow this timetable which I made for you. Okay, so Bhaiya had made one timetable in which there are different things given कि आपको इस समय में ये करना है, but after looking the timetable, Munna is complaining about that he do not have time to play. इसमें नहीं है उसके लिए जो समय जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसमें खेलने के लिए तो समय ही नहीं है। ओके, सो अब अभी हम आगे देखते हैं, सीन 2 है। अब सीन 2 दिखा रहे हैं कि अब ये सब बात हो गई है, अब देखिए क्या होता है। द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। अब क्या है, जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो ओवर हो चुके हैं और रिजल्ट भी आ गया। लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ। लास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं भैया कि मैं इस बार, भैया बोल रहे हैं कि मैं इस बार से फिर से फेल हो गया हूं। ओके, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। लेकिन मुन्ना क्या बोल रहा है, बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, और मैं तो पास भी हो गया हूं और मैंने टॉप भी किया है। नाउ देर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। ठीक है, समटाइम्स यू सी ना कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़े ही समय पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, बहुत जल्दी से चीज़ों को समझ लेते हैं। सो सिमिलरली इट हैपन्स विद मुन्ना कि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है, लेकिन इतना सब खेलने के बाद भी वो क्या है, वो पास हो जाता है और टॉप करता है अपनी क्लास में। नाउ व्हाट ही सेड दैट देर इज ओनली 2 years डिफरेंस, है ना। अभी वो 3 classes अहेड थे भैया उससे, लेकिन अब क्या है कि जो भैया है वो फेल हो गए हैं और मुन्ना पास हो गया है। सो नाउ ही इज सेइंग कि नाउ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। ओके, एंड बेटा अंडरलाइन दिस वर्ड ALAS, इट मीन्स हाई, है ना। जब हम कोई भी बुरी चीज़ होती है, हाय मैं फेल हो गई, ओके, हाय ये क्या हो गया, हाय मैं गिर गई, सो जो वो इन हिंदी वी से हाय, ठीक है, उसको हम ALAS, LAS. Okay. Now see, so in scene 2, after the results come out, we came to know that कि भैया failed in his class, but Munna passed and topped the class. Okay. So भैया, but my dear brother, don't be so proud. So now भैया is saying to Munna कि my dear brother, don't be so proud. तुम्हें ज़्यादा प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सी दिस वर्ड डोंट। सो फुल फॉर्म ऑफ दिस इज डू नॉट, DONOT, डोंट। ओके, डू नॉट, फुल फॉर्म ऑफ डोंट इज डू नॉट। सो हेयर भैया इज सेइंग कि डोंट बी सो प्राउड। ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा गर्व मत फील करो, प्राउड मत हो। यू हैव पास्ड ओनली 1 class. Okay, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. कि वो बोल रहे कि you have passed only 1 class, अभी तो तुमने सिर्फ एक ही क्लास पास की है, and you think, और तुम सोच रहे हो कि I am stupid, मैं बेवकूफ़ हूँ, and you are smart, और तुम बहुत ही स्मार्ट हो। ओके, सो दिस वर्ड ऑल्सो I am। ठीक है, हम इसको शॉर्ट में, जैसे फुल फॉर्म क्या होता है, I देन A, ठीक है, AM, लेकिन हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, I और यहाँ पे ऊपर कॉमा देन M. सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ I am. सो I am stupid and you are smart. Once in a while in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean you have mastered the game. Okay, so here Bhaiya is saying that don't be so proud, you have only passed 1 class and you are thinking that I am stupid. Once in a while, एक बार हो सकता है कि गुल्ली डंडा के एक बार कि गुल्ली डंडा के गेम में तुम जीत गए थे, यू माइट गेट लकी, तुम लकी हो सकते हो, एंड हिट अ गोल, और तुमने, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि ये
ऐसे गुल्ली डंडा कुछ गेम्स खेल रहे हैं। कि गुल्ली डंडा का एक गेम होता है जिसमें एक लकड़ी के कुछ चीज़ बनी होती है, एक डंडा होता है, उससे उसको मारते हैं और हम आगे तक उसको पहुंचाते हैं। एंड हिट अ गोल, और तुम हिट कर देते हो गोल को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि तुमने वो गेम बहुत अच्छे से सीख लिया है, उसके बारे में सब जान लिया है। ओके, सो नाउ ही वॉज कंपेयरिंग द गेम ऑफ गुल्ली डंडा और अ गेम विथ हिज लाइफ, दैट कि अगर हम एक गेम जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो सब चीज़ें सीख ली है। और अगर हम एक क्लास में पास हो गए हैं तो हमें सभी चीज़ समझ में आ गई हैं। ओके, सो यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो हेयर भैया इज सेइंग कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. Okay, so here Bhaiya is talking about the math subject. When you will go to in the higher classes, then you will find that जो मैथमेटिक्स है उसमें आप देखेंगे एक एल्जेब्रा होता है और एक ज्योमेट्री होता है। ओके, ठीक, ज्योमेट्री आप अभी भी देख रहे होंगे, सर्कल, ट्रायंगल, जो भी ये सब चीज़ें हैं, दैट कम्स इन ज्योमेट्री। ओके, एंड एल्जेब्रा, जो बाकी सब मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस हैं वो सब हम एल्जेब्रा के अंडर करते हैं। सो इन द हायर क्लासेस दीज टू जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी और आपको फिर उसमें अलग अलग से इसको पढ़ना है। ओके, सो व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट, जब आप एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे हायर क्लासेस में, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। क्योंकि इसमें आपको मैथ्स में तो ऑब्वियसली ना बहुत ही प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी चीज़ें बार बार कर कर देखनी है। सो हियर ही इज एम्फेसाइजिंग ऑन द हार्ड वर्क। ओके, इन ज्योमेट्री इफ वन राइट्स ACB, ठीक है, here भैया is saying कि if someone writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. अगर जैसे आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, अभी तो आपने सब एक ट्रायंगल तो सीखा ही होगा, तो जो ये एक बीच वाला एंगल होता है उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं बच्चे। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं भी समझा है तो इन द हायर क्लासेस यू विल स्टडी दिस कि ACB है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल के एक एंगल्स को दिखा रहा है, एंड इन द बिटवीन विच इज़ रिटन इट इज़ शोइंग द मिडल एंगल। ओके, सो अभी यहाँ पर C है मिडल एंगल, लेकिन इफ आई राइट दिस एज ABC, सो इन दिस मिडल एंगल इज B, सो इट इज टू डिफरेंट थिंग्स। सो अगर कोई ACB की जगह पर ABC लिख देता है, सो आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, सो इट इज रॉन्ग आंसर। द एग्जामिनर, जो एग्जाम चेक करने वाला है, विल नॉट स्पेयर यू, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड्स बाय वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, तुम्हें टेक्स्ट बुक में से एक एक वर्ड, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। ओके, नाउ मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। So here, after listening all these things about the mathematics or the importance of hard work or learning the word by word or learning the things word by word, Munna is saying that oh भाई साहब, this is scary, ये तो बहुत ही डराने वाला है। Scary means जिससे आप बहुत डर जाते हो। Okay, so I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. Okay, so here Munna is saying I don't think I want to go to the 9th class now. Okay, वो बोल रहा है कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 9th क्लास में चला जाऊँ, but I will still complete my day's homework, जो आज का होमवर्क है मैं उसको ज़रूर ही कंप्लीट करूँगा, so that I get no punishment in क्लास, जो क्लास में मुझे फिर पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, कि अगर आप होमवर्क नहीं कंप्लीट करेंगे तो माइट भी जो हिज टीचर गिव्स हिम द पनिशमेंट। ओके, सो हेयर वो बोलता है कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूँ ताकि मुझे पनिशमेंट ना मिले अपनी क्लास में। भैया, नाउ भैया सेड जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. So Bhaiya is sharing one thing with the Munna that just today, आज ही, we were asked to write a short essay. Okay, in English,
his teacher gave him a question that in which he has to write a short essay on the topic of punctuality. Punctuality means बेटा हमें हर काम बिल्कुल टाइम पे करना चाहिए, हमें हर चीज़ फॉलो करनी चाहिए. So write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. So आपको एक short essay लिखना है, वो भी कितने में, 4 pages में, ठीक है. And imagine और सोचो, can something be written on 4 pages and still be short? It is all so mixed up, है ना. So उनके टीचर ने बोला है कि write a short essay on the topic of punctuality and it should be in the 4 pages. वो 4 पेज में होना चाहिए. तो भैया इस saying कि हो सकता है कि कोई चीज़ 4 पेजेस में हम लिख रहे हैं और वो एक शॉर्ट भी हो. तो बोल रहा है इट्स ऑल मिक्सड अप, सब चीज़ें जो हैं मिक्स्ड हैं, ठीक है, मिली हुई हैं. Munna, thinking aloud, thank God it was time for school or else the scolding would have gone on and on. So एकदम से अब मुन्ना क्या देखता है कि thank God, बच गए, it was time for school, अब स्कूल जाने का समय आ गया है, और else the scolding would have gone on and on. ठीक है, वो जो डांट जो उसको पड़ रही है, जो वो उनको समझा रहे हैं, वो क्या है कि वो चलती रहेगी, है ना. ही वॉज थिंकिंग दैट भैया स्कोल्डिंग हिम, है ना, बट वी कैन से दैट ही इज़ नॉट स्कोल्डिंग, वो उनको समझा रहे हैं, ठीक है. वो उनको इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क, इम्पोर्टेंस ऑफ द आवर एल्डर्स इन आवर लाइफ ना, कि वो कितनी मेहनत से कमाते हैं हमारे लिए. सो ही वॉज जस्ट टेलिंग दैट, बट ही वॉज थिंकिंग कि भैया स्कोल्डिंग है. ओके, सो वो क्या सोचता है कि अभी इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, अभी तो स्कूल जाने का समय आ गया है, अगर स्कूल जाने का टाइम नहीं होता तो भैया मुझे ऐसे ही डांटते रहते, ये डांट ऐसे ही पड़ती रहती. सो नाउ सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन. सीन 3 में क्या दिखा रहे हैं आप, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट इज सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. ओके, सो वंस अगेन मुन्ना पास्ड इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास में पास हो जाता है, एंड वंस अगेन भैया फेल्ड अगेन, और भैया फिर से फेल हो जाते हैं. भैया वॉज रियली अपसेट, वो बहुत ही अब उदास हैं. ओके, अभी वो क्या है, वो बहुत ही उदास हैं. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. So मुन्ना जो है was also sad, वो भी अपने भैया को unhappy, उदास देखकर, परेशान देखकर sad हैं. भैया now becomes gentler with मुन्ना. मुन्ना became naughtier because of this and studied even less than before. अब क्या है, भैया वैसे ही परेशान हैं कि वो फेल हो गए हैं. सो उसको देखकर जो मुन्ना है वो उनको अच्छा, मुन्ना को अच्छा नहीं लग रहा है. ओके, अब क्या हो गया है इससे, भैया नाउ बिकम जेंटलर, अब वो थोड़े से काइंड, थोड़े से दयालु हो गए हैं, अब वो इसको इतना नहीं समझाते हैं, ठीक है, वो अपने ही काम करते रहते हैं. एंड इससे क्या हुआ है, मुन्ना बिकम नॉटियर, अब जो मुन्ना है वो नॉटियर, ज़्यादा शरारती हो गया है. बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, और वो अब पहले से भी कम पढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब भैया उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद से फेल हो गए हैं, तो वो परेशान भी हैं. ओके, सो इसकी वजह से वो अब कम पढ़ने लगा है. नाउ मुन्ना talking aloud, oh I am lucky, I can pass easily. So मुन्ना is saying कि I am lucky, मैं तो बहुत लकी हूँ, I can pass easily, मैं तो आसानी से पास हो जाता हूँ. I need not study so hard, मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है. Now I can play games with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites. Okay, so मुन्ना is saying to himself that I am lucky, I can pass easily, there is no need to do so much hard work for me, by me, मुझे मेरे से बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. I can because I can pass easily, so I can play games with the friends and fly kites also. Okay, but I should be very careful also that while doing all these things भैया doesn't see me, वो मुझे ना देखें जब मैं ये सब कर रहा हूँ. Okay. Next, one day, a kite is flying slowly downwards. What is the meaning of downwards? Downwards का मतलब होता है नीचे की तरफ.
Okay, so one day a kite is flying slowly downwards. Munna start running in order to grab it. Grab का मतलब होता है बेटा पकड़ना, ठीक है, want to grab it, वो उसको पकड़ना चाहता है. Suddenly he comes face to face with भैया. Okay, so one day Munna saw that जो kite है is flying downwards, वो नीचे की तरफ आ रही है. Then he run, वो भागता है, he wants to grab it or catch it, वो उसको पकड़ना चाहता है. But while doing all this thing, he comes face to face with भैया, वो भैया से face to face आ जाता है, मीन्स उसके सामने एकदम से भैया आ जाते हैं. भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, अब भैया क्या है, उसका हैंड पकड़ लेते हैं. Aren't you ashamed to be flying kites all day long? ठीक है, वो बोल रहे हैं. अब ये देखिए, aren't, okay, what we pronounce this aren't, and what is the full form? Are not, ARENOT, similar like didn't, did not, don't, do not. Okay, aren't you ashamed to be playing kites all day long? तुम्हें शर्म नहीं आती? ashamed means शर्म आना ना, तुम्हें शर्म, जैसे हम कई बार पेरेंट्स भी ये चीज़ यूज़ करते हैं कि अच्छा क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पढ़ते नहीं हो, पूरा दिन खेलते रहते हो. ओके, डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th class and are not studying in a lower class. Now you should understand that you are in the 8th class, okay, and you are not studying in the lower classes in which you have to do less work, है ना. अब आप छोटी क्लासेस में नहीं हो कि आपको थोड़ा काम मिलता है, थोड़ा काम करना पड़ता है, आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ता है. बट नाउ यू आर इन द 8th class, you should work hard. If you think that I am just one class ahead of you and you cannot say anything, you are wrong. ठीक है, if you think that I am just one class ahead of you and I cannot say anything, you are wrong. अभी भैया क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अब सिर्फ तुम मेरे से एक ही क्लास पीछे हो या फिर मैं तुमसे एक क्लास बड़ा हूँ, I cannot say anything, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा या नहीं कह सकता हूँ, you are wrong. ठीक है, तो तुम गलत हो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो. I am 5 years older than you are, मैं तुमसे 5 साल तो बड़ा हूँ ही, एंड विल ऑलवेज बी, और वो बड़ा रहूँगा ही, है ना. एज तो हमारी कम नहीं हो जाएगी. ठीक है, वो फेल हो रहे थे क्लास में और मुन्ना इज़ पासिंग द क्लासेस, तो वो उनके एक ही क्लास पीछे रह गया है. लेकिन इट डजेंट मीन दैट कि वो उसे कुछ नहीं कहेंगे. ही कैनॉट से एनीथिंग टू मुन्ना, एंड ही वाज सेइंग दैट आई एम 5 years older than you, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और मैं इतना बड़ा तो रहूँगा ही. अंडरस्टैंडिंग डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझना है चीज़ों को, समझदारी है जो, डजेंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, ये सिर्फ बुक्स रीड करने से नहीं आती है. लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा को देखो. माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल, माँ तो कभी स्कूल नहीं गई हैं. एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th class, और बाबा जो हैं उन्होंने सिर्फ 5 ही क्लास पास की है. ठीक है, तो ऐसा सुन के मुन्ना क्या बोलता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? क्यों मुन्ना को ये नहीं पता है कि देखो माँ बाबा तो कभी नहीं पढ़े हैं, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई है और बाबा ने तो सिर्फ 5 ही क्लास पास की है. तो मुन्ना एकदम से शॉक्ड हो जाता है, तो पूछता है, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है? येस, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो. तो भैया बोलते हैं, यस, हाँ, देयर आर 1,000 थिंग्स दैट दे नो, बहुत 1000 चीज़ें हैं जो उनको पता है. देन यू और मी, हमसे जितनी हमें चीज़ें पता है उनसे भी ज़्यादा चीज़ें माँ बापों को पता है. एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, ओके, विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड मीन्स बेटा, अगर हम दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब उनके बारे में हर चीज़ों को हम जान लें. ठीक है, जो होल वर्ल्ड की अच्छाइयाँ हैं हम उनको पढ़ लें. माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. ओके, सो अगर हम सारी दुनिया की चीज़ें पढ़ भी लेते हैं, उनको समझ भी लेते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं हम उनको जान लेते हैं, लेकिन जो माँ बाबा हैं विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस, वो हमें एक्सप्लेन करें, चीज़ों को बताएं और हमें ठीक करें जहाँ पर हम गलती कर रहे हैं. तो इससे क्या दिख रहा है बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो वो हमें कुछ नहीं कह सकते हैं, बट दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन अस. ओके, नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे. नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे, अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो बताओ तुम क्या करोगे.
सो मुन्ना से आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता है। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो वो क्या बोलता है कि आई वुड टेल बाबा, मैं बाबा को बताऊंगा, एंड ही वुड रश टू हॉस्टल। रश का मतलब होता है जब आप बहुत जल्दबाजी में, बहुत जल्दी से किसी चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड रश टू एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। जैसे ही बाबा को पता चलेगा तो वो हॉस्टल भागे आएंगे। ओके, सो ही वॉज गिविंग वन एग्जाम्पल कि वट वुड यू डू इफ आई वर फॉल सिक। अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो तुम खुद से तो नहीं कुछ कर पाओगे ना, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आवर पेरेंट्स और आवर एल्डर्स। सो आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो भैया बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता था, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर कि तुम यही आंसर करोगे। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor। ठीक है, नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, वो बोल रहे हैं कि इससे बाबा अपसेट नहीं होंगे, ठीक है, कि बीमार तो हो जाते हैं कोई बात नहीं। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ है, मैं क्यों बीमार हुआ हूँ, मैंने कुछ गलत तो नहीं खाया है, ठीक है, मैंने कुछ ऐसी जो चीज़ खराब हो गई है वो खाने से बीमार हो गया हूँ, या मैंने क्या चीज़ की है जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ। एंड ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और वो फिर एक डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, ठीक है, बाबा को पता है कि एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक उनकी उन्हें क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ओके ओके, यहाँ पे समझ में आया कि भैया बोलते हैं कि आई नो दैट यू आंसर मी लाइक दिस, बट he would not get upset, वो परेशान नहीं होंगे, rather he try to find out what was wrong with me, ठीक है, कि वो मेरे साथ क्या गलत हुआ है, and after that he would call a doctor। ओके, एंड वाई ही डू ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस, है ना। तो इससे दिख रहा है कि अगर अभी क्या है, हम लोग अगर कोई अलग सी सिचुएशन आ जाती है तो समटाइम्स वी बिकम वेरी नर्वस, है ना, परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे बड़े जो हैं वो हमें बोलते हैं ओके डोंट बी गेट सो अपसेट और नर्वस, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, कि हम इसका रास्ता निकालते हैं कि ठीक है हम इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, एंड दे डेफिनेटली हेल्प अस। सो मुन्ना, वट मुन्ना सेड विथ टीयर्स इन हिज आइज, अब उसकी आंखों में आंसू हैं। भैया आई एम सॉरी, वट यू से इज ट्रू, जो आपने बोला वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, अब भैया मुन्ना को गले लगा लेते हैं। सो मुन्ना अब समझ गया है, वो बोलता है सॉरी भैया, वट यू से इज ट्रू, जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया इज सेइंग कि मुझे भी खेलना और काइट फ्लाई करना पसंद है, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलूँगा तो मैं तुम्हें कैसे देखूँगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम क्या हो, मेरी जिम्मेदारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बिकॉज आई एम एल्डर देन यू, यू आर यंगर देन मी, सो आई हैव टू कीप ऑन आई ऑन यू, कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। सो मुन्ना क्या बोलता है, आई लव यू भैया, ठीक है, वो बोलता है आई लव यू भैया, बिकॉज अभी वो समझ चुका है कि यस भैया इज करेक्ट, वो सही हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि मुझे प्राउड नहीं करना चाहिए कि सो बिकॉज कि मैंने कुछ क्लासेस को पास कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या है कि भैया तो बड़े हैं, वो बेशक से ठीक है फेल हो गए हैं, लेकिन ही वॉज एल्डर देन, ही इज़ एल्डर देन द मुन्ना, और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ से, तो वो उसको हमेशा ही हेल्प करेंगे। ओके, सो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, थोड़ी सी बड़ी है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी, इट इज़ ओनली लाइक अ कन्वर्जेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। ओके, वो आपस में बात कर रहे हैं, और जिससे हमें एक मॉरल वैल्यू मिल रही है, एक लर्निंग मिल रही है। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट दिस स्टोरी टीचेज अस दैट नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट वी बिकम, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, कि हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितने इंटेलिजेंट हो गए हैं, कि हमने कितनी क्लास पास कर ली है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, है ना, कि हमें अपने जो बड़े हैं उनको रिस्पेक्ट करना, कि ठीक है, अरे अब मुन्ना क्या सोचता, भैया तो फेल हो जाते हैं, मुझे तो इनकी बात मानने की ज़रूरत ही नहीं है, वी शुड नॉट डू लाइक दैट, ठीक है, वी शुड लिसन टू देयर स्कोल्डिंग्स, जो भी, एंड लिसन टू देयर, जो भी हमें वो हेल्प करते हैं, सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं, वी शुड लिसन देम ऑल्सो। ओके,
बिकॉज दे वॉन्ट अवर गुडविल, वो हमारा गुडविल चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं. भैया वॉन्ट्स दैट मुन्ना फेल ना हो, वो अच्छे मार्क्स लेकर आए. इफ़ ही वेस्ट टाइम लाइक दैट कि इन फ्लाइंग काइट्स और प्लेइंग गेम्स, सो वो चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा. ही वेस्ट हिज टाइम, है ना. सो भैया डू नॉट वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, दैट्स वाई ही ऑलवेज scold him or advise him. Okay. So this is all about the story. So you please read this story and see the video again and again जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है. In this there is not so many new words or the difficult words, जो भी हैं वो हमने बीच में डिस्कस किए ही हैं. So please watch again and again so that आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. Okay. So keep learning. Good luck and thank you.